Yes. Okay. So the cost of a book, एक book की cost है $X. How do I find the number of books? For example, मैं अगर chips का पैकेट खरीदता हूँ 50 रुपीज का एक है, तो मैं 100 रुपीज में कितने खरीद सकता हूँ? हाँ बच्चों, if a packet costs 50 rupees, तो मैं 100 रुपीज में कितने खरीद सकता हूँ? बताओ भाई, आसान सी चीज है, जब तक यू वॉन्ट रिस्पॉन्ड तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो बता रहा है नंबर ऑफ बुक्स जो हैं, हम बेसिकली टोटल पैसे को डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ वन बुक करेंगे तो नंबर ऑफ बुक्स आ जाएंगी हमारे पास. सो व्हाट इज द नंबर ऑफ बुक्स? कितनी बुक्स खरीद सकते हैं हम? 40 upon x. Remember, these are the number of books. If I ask you कि कितनी बुक्स आप खरीद सकते हैं, so you will tell me the number of books which are 40 upon x. Is this clear? Yes. So number of books हमारे पास कितनी हम खरीद सकते हैं? 40 upon x. Remember, these are the number of books. ठीक है? Okay, now moving on to the next part. जरा सवाल पढ़ के समझना है हमें. The question says the cost of each book is increased by 2. So can you tell me the new cost? 2x. बोलो. 2x. No. पहले $X थी, अब $2 बढ़ गई. 2 They're plus not telling you twice over. 2 plus x. Yes, 2 plus x, x plus 2. This is the new cost. Now if I ask you number of books bought, अब नंबर ऑफ बुक्स कितनी खरीद सकते हैं? वही $40 में 40 upon x plus 2. Is this clear or not? दोबारा इस बात को समझते हैं. न्यू लिख देता हूँ उसको मैं. चलो, आई एम ट्राइंग टू ब्रेक इट डाउन as easy as possible. The number of books हमारे पास पहले थी 40 upon x. Now the new cost is x plus 2. अब number of books होंगी 40 upon x plus 2. Can I buy more books now or can I buy less books now? Less books now. मैं अब ज्यादा बुक्स नहीं खरीद सकता, अब मैं कम बुक्स खरीदूंगा because the cost has increased. I ask you again, पहले मैं कितनी बुक्स खरीद सकता था? How many books could I buy previously? 40 upon x. Yes, these were the number of books. पहले मैं 40 upon x खरीद रहा था और अब मैं कितनी खरीद रहा हूँ? 40 upon x plus 2. और दोनों में डिफरेंस कितना है? 2. एक बुक का नंबर ऑफ बुक्स में. रीड द स्टेटमेंट दोबारा आराम सुकून से. पहले मैं ज्यादा बुक्स खरीद रहा था, अब मैं कम बुक्स खरीद रहा हूँ. पहले की जो बुक्स हैं और अब की बुक्स में जो डिफरेंस है नंबर ऑफ बुक्स में, दैट इज 1. टेक योर टाइम इन अंडरस्टैंडिंग दिस. हर कोई आगे भागता है, इस बात को समझने में टाइम नहीं लगाते हो तो फिर प्रॉब्लम में आ जाते हो. हाउ डू आई सिंप्लीफाई दीज टू फ्रैक्शंस? आई जस्ट टेक द एलसीएम. 40 को मल्टीप्लाई करूंगा x plus 2 से, ये वाले 40 को मल्टीप्लाई करूंगा x से, and this will be 1. 40 will multiply by x, 40x plus 42s are 80 minus 40x. 1 will multiply by x into x plus 2. 40x और ये कैंसिल हो गया, 80 and x square plus 2x. 80 को उधर भेज देते हैं and we have our equation. Is there not the equation already दी हुई थी?
हाँ, तो the question said write an equation in x and show that it simplifies to. They were telling us कि finally यही बननी चाहिए. तो अगर नहीं बनेगी तो we have to check कि हमने कोई गलती की है. Clear है बेटे? Yes. Now the question is asking us to solve this equation. हम middle term breaking, quadratic formula कुछ भी लगा सकते हैं इस पे. If people who are good with middle term breaking वो middle term breaking कर लें. Quadratic formula लगा लो कि बगैर कैलकुलेटर लेकिन करना है इसको, इस वाले को माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. -2 plus minus 480s are 320. 324 किसका रूट होता है? बेटे 324 is a square root of what? बताएगा कोई मुझे 324 किसका स्क्वायर रूट होता है? 18 का. So the two equations or the two values are -2 -18 upon. So what are the two equations? एक तो x की वैल्यू 8 आ गई, और the other value is -10. Okay, remember the question has asked us to solve this in isolation. उसने बस अलग से solve करने कहा था. That is why we have solved it now. कह रहे हैं find the original cost of one book. What was the original cost of one book? 40 upon x. नहीं, that was the number of books. Cost is Cost x. of a book was Cost x. is x. So which value of x will I take for the cost? X dot. कौन सी वैल्यू ऑफ x लूंगा? वो x डॉलर्स थी. अब x की कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए? पॉजिटिव वाली. Yes, पॉजिटिव वाली. +8 नेगेटिव नहीं लेंगे हम. It will be +8. Now we'll do another equation. Please इसको समझो. जहाँ कैलकुलेटर अलाउ होगा I will tell you कि भाई कैलकुलेटर यूज करो. Not uselessly use a calculator. वरना समझ नहीं पाओगे पेपर 1 में कैसे करना है सर. Remember, this is again one of those topics जो आपको not only will it teach you quadratics, but it will review a lot of other topics for you. So if you are smart enough, you can learn a lot through this topic. If you are just trying to pass your time, so it won't be of much use to you. Okay. देखो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है. The diagram shows a trapezium. Two of its angles are 90. The length of its sides are given in terms of x. The perimeter is 62 units. क्या होता है perimeter बच्चों? What is perimeter? Perimeter is the total length of the boundaries or sum of all sides. वो 62 units है. कह रहे हैं write down a quadratic equation in x to show this information. That means perimeter अगर मैं निकालूं, that will be x plus 2 plus 2x plus 4 plus x square minus 40. The question told me कि perimeter total जो है ना वो 62 है. I'll arrange the like terms x square
x 2x और x 4x हो जाएगा 2 4 and -40 will become 6 चला गया हमारे पास तो -34 x square plus 4x -34 -62 x square plus 4x minus 96 is 0. If anyone else is getting a different equation, please let me know. If anyone is unable to understand, मुझे बताओगे तो मैं समझा सकता हूँ. I do not have the superpower of drilling into your brains. 4x कैसे आया? अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, सारे लाइक टर्म्स को हमने ऐड कर दिया था, सब प्लस में ही थे. We ended up getting 4x. Is this clear, बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. पेपर 1 लेवल का क्वेश्चन है ये, सो प्लीज सिंपल कैलकुलेटर करने की कोशिश करो. -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4 a c है -96 और 2a. मैं दोबारा इक्वेशन भी लिख देता हूँ यहाँ so that you people can use it wisely. वरना मिडिल टर्म ब्रेकिंग, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी आप लगा सकते हैं. Just plugging in the values of x -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16 और ये प्लस हो जाएगा 4 into 96 is 384 upon 2 -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 400. क्या होता है 400 का स्क्वायर रूट? यस बेटे, what is the square root of 400? 20. Very good. It is 20. -4 plus 20 upon 2 and -4 minus 20 upon 2. क्या ये की दो वैल्यूज? 16 upon 2 is 8 and -12. नेक्स्ट पार्ट कह रहा है राइट डाउन द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ x. अब इस क्वेश्चन में व्हाट वाज x रिप्रेजेंटिंग? इट वाज अ लेंथ, तो लेंथ नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ x विल बी 8. यहां तक क्लियर है बच्चों? The question is asking us to calculate the area of trapezium. Area of trapezium निकालते हैं हम half into height into sum of parallel sides. इस क्वेश्चन में what is the height? X and the parallel side, one is 2x plus 4, the other is x square minus 20. तो height x ले लेंगे हम, half height is x, sum of parallel side, एक parallel side ये है and the other is
स्क्वायर माइनस 40 थी ना, एंड द अदर इज 2x प्लस 4, हमने दोनों को ऐड कर दिया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बिफोर प्लगिंग इन द वैल्यूज। x square plus 2x minus 36. Now you can just plug in the value of x. x की वैल्यू डाल दो 8 square plus 2 times 8 minus 36. Try not to use a calculator in this. 2 और 8 simplify होके 4. 8 का square is 64. 2 8s are 16 minus 36. I am telling you every step manually ताकि बगैर कैलकुलेटर कैसे करना है आप ये सीख सकें। 64 और ये हो गया minus 24 और 44. Can you tell me what is the value of A? कितनी आ रही है फाइनली बताओ। मैंने हर स्टेप मैनुअली बताया ताकि आप भी इसको कर सकें without using your calculator. What is 4 times 44? कह रहा है 176। बाकी सब भी चेक कर लें भाई, मुझे नहीं पता है। I rely on your values. रिपीट कर रहा हूँ बार बार, ये टॉपिक आपको बहुत कुछ सिखाएगा if you are attentive enough. Okay, what kind of a triangle is this? कौन सा ट्रायंगल है बच्चों? राइट एंगल्ड। राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या मैं लगा सकता हूँ? सोकाटोआ और पैथागोरस थ्योरम, राइट? तो क्वेश्चन मुझे एक इक्वेशन बनाने कह रहा है, वो इक्वेशन में पैथागोरस थ्योरम अगर लगाऊं so I can form that equation. Pythagoras theorem is h square. h क्या होता है? मेरा हाइपोटेन्यूज। 90 के बिल्कुल सामने वाली जो साइड होती है वो मेरा हाइपोटेन्यूज होती है, लॉन्गेस्ट साइड। ये मेरा हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर और बेस किसी को भी बना लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। So now I will apply the Pythagoras theorem. Hypotenuse is 2y minus 1 का square. Perpendicular is y का square plus base is y plus 2 का square. So expand कैसे करेंगे? Either we can make two brackets and then multiply them with each other, या जिन बच्चे को a minus b whole square आता है वो ऐसे भी कर सकते हैं, a square minus 2ab plus b square. Or you can make two brackets and then multiply them. दोनों से एक ही आंसर आता है भाई। साइड भी दे सकते हैं जी बेटे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड नहीं सकते, होल स्क्वायर नहीं, तो बीच में ऐड हो रहा है ना। रूट सॉरी रूट भी, अच्छा रूट नहीं हो सकता, नहीं कर सकते रूट, क्योंकि बीच में ऐड हो रहा है। अगर ऐड हो रहा है तो हम उसको ऐसे ही नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर? ओके। हाँ बच्चों, सिंप्लीफाई करो, स्क्वायर रूट वगैरह नहीं काट सकते। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, इसमें सीखो, ये सारी जो क्वेरीज हैं इसमें क्लियर करो अपनी, सो दैट यू डू नॉट हैव दीज प्रॉब्लम्स लेटर ऑन। ये मेरे पास 2y स्क्वायर हो गया, 4y और 4, इसको इधर ले आते हैं, 4y स्क्वायर
minus 2y square minus 4y minus 4y plus 1 minus 4 is 0. So 2y square minus 8y. The equation was already provided. You just had to show every step to get that equation. ये नहीं कर सकते आप एक स्टेप करके बोले हाँ इक्वेशन आ गई. आंसर तो पहले दिया हुआ है. जब आंसर गिवन होता है तो यू हैव टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर विथ योर मेथड. इज दिस क्लियर बच्चों? लिख लो आराम से, समझ लो. नहीं समझ आया है तो पूछ लो. हर स्टेप आराम सुकून से लिखो. मैंने दोनों तरह से एक्सपेंशन दिखा दी है, a माइनस बी होल स्क्वायर से भी और दो ब्रैकेट्स बना के भी दिखा दिए. बोथ मीन द सेम थिंग. जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो आप यूज कर लें, बट प्लीज ये स्क्वायर को दोनों पे अलग अलग मत लगाएं. डू नॉट डू दैट कि स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर लेंगे, वो मत करना भाई. उसके अलावा आप जो दिल करे दोनों में से कर सकते हैं. या तो दो ब्रैकेट्स बना के सिंपली एक्सपैंड करो, या a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर करो. आई एम अलाउइंग यू बोथ मेथड्स. ऑब्वियसली अलाउ है, दोनों एक ही बात है. यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यू जस्ट हैड टू शो द इक्वेशन. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कल मैंने क्या बताया था, अगर 2 डेसिमल प्लेस लिखा हो तो क्या करना है भाई? बेटे व्हाट टू डू अगर किसी क्वाड्रेटिक में वो कहे 2 डेसिमल प्लेस? डेसिमल के आगे दोनों डिजिट लिखने हैं. हाँ तो उसमें हम अप्रोच क्या लेंगे? क्या अप्रोच लेंगे? 2 डेसिमल प्लेस है तो we will always apply the quadratic formula. जब भी 2 डेसिमल प्लेस करेगा हम quadratic formula ही अप्लाई करेंगे. इसमें a क्या है हमारा? रिमेंबर अब हम y निकाल रहे हैं तो हर दफा x मत लिखना बेटे. और मैं पहले a b c लिख देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो. a is 2, b is -8, c is -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -8 का स्क्वायर minus 4ac upon 2a. 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट के अंदर निकाल लो, 64 प्लस 4 2s are 8, 8 3s are 24 upon 4. 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 88 upon 4, 8 minus square root of 88 upon 4. अब आप मुझे 2 डेसिमल प्लेस पे दो वैल्यूज बता दें. You can use your calculators for this. पॉजिटिव वाले की वैल्यू है 4.35 और नेगेटिव वाले की वैल्यू है -0.35. राउंडिंग ऑफ की गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो? 35 के आगे क्या था? जब 3 4 था मैं 35 कर दिया ना, 5 था उधर से आगे. 4 के आगे 5 था. ओके. और माइनस 0.
ओके, सब जरा राउंडिंग ऑफ की कोई गड़बड़ ना करे बेटे। और एरिया निकालने के लिए अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, बिकॉज सर्ड्स इज नाउ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। एरिया निकालने के लिए आप सर्ड की ही वैल्यू यूज करें। सर्ड सिंप्लीफाइड मुझे वैल्यू कोई बताएगा वाई की क्या है? ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आगे मुझे यूज करनी है। व्हाट इज दी सर्ड सिंप्लीफाइड वैल्यू? पॉजिटिव वाली की पूछ रहा हूँ, इसकी क्या है? ये कैलकुलेटर देगा ना सर्ड में, कोई बताएगा मुझे? फोर प्लस अंडर रूट 22/2। सही है, मुझे आगे यूज करना होगा तो मैं ये यूज करूंगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस किसको लेंगे हम? बेस y+2, बेस इज y+2, तो दिस इज 4 प्लस स्क्वायर रूट 22/2 y+2, और हाइट है मेरी y विच इज 4 प्लस, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू ऑपरेट विद सर्ड्स। अब आप डायरेक्ट बेशक कैलकुलेटर में डाल दें, नो नीड टू वरी, जस्ट लेटिंग यू नो कि सर्ड्स के साथ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं हम, उससे ज्यादा एग्जैक्ट आंसर आता है। नाउ टेल मी द एरिया। थर्टीन 13.79। 13.79, इसको आप 3SF पे राउंड ऑफ कर सकते हैं, 13.8। चलो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। सवाल पढ़ो पहले, दिस वन यू पीपल विल डू ऑन योर ओन and I'll only answer your questions. खुद से करो, जो समझ आए सही गलत, बट गिव इट अ ट्राई। पहले पूरा करना, फिर आंसर्स बताना। पहले से ही हर पार्ट का आंसर मत बनाता आना। You're done with all the parts. चलो।
क्या हुआ बच्चों? पहला पार्ट बताएगा कोई मुझे? हाउ मेनी बॉटल्स आर सोल्ड, कैलकुलेटर्स आर अलाउड, पेपर 2 का क्वेश्चन है। हाँ बच्चों, सर आंसर बता सकते, मैं श्योर नहीं हूँ आंसर का। कोई बात नहीं, गलत होगा ना ज्यादा से ज्यादा। सर 2713.5। मेरा भी यही है सर। अब देखो 60.3 को यू हैड टू डिवाइड बाय सेंट्स को 0.45 करना था। इज दैट व्हाट यू डिड? नहीं सर, टोटल 60.3 पैसे बनाए हैं और 45 सेंट्स की एक बॉटल है। नंबर ऑफ बॉटल्स निकालना था, तो यू हैड टू डिवाइड सेंट्स को कन्वर्ट करना था डॉलर्स में, या तो यू कुड हैव डन 6030 अपॉन 45, या तो दोनों को सेंट्स में कर लेते। ऐसा ही है, जी समझ आया बेटे? जी सर। क्लियर है? जी तो कितना आ रहा है आंसर तो बताओ। 134। उसने बोला नेक्स्ट मंथ ट्यूसडे द शॉप रिसीव्स एक्स सेंट्स। अब सेंट्स में बता दिया, एंड 45 सेंट्स ईच। अब नंबर ऑफ बॉटल्स कैसे निकालेंगे भाई? बताओ बेटे, एक्स पैसे टोटल एक्स सेंट्स दे रिसीव एंड 45 सेंट्स की एक बॉटल थी। एक्स अपॉन 45। दैट्स इट। नेक्स्ट में कहा द शॉप रिसीव्स एक्स माइनस 75 सेंट्स by selling bottles of water at 48 cents each. So x minus 75 over 48. वेरी गुड, ये बात हमें समझनी है। मैंने कहा ना, आसान मुश्किल बात की बात है, क्वाड्रेटिक बात की बात है, हमें इक्वेशंस बनाना सीखना है। अब द क्वेश्चन इज टेलिंग यू द नंबर ऑफ बॉटल्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे वाज 7 मोर। ये जो ट्यूसडे को बॉटल्स मिली, ये इससे 7 ज्यादा थी। दैट मीन्स कैन आई से कि दोनों का जो डिफरेंस था दैट वाज, या इसमें से 7 माइनस कर दूं, या आई कैन से, चलो ये करता हूं, ये वेंसडे वाली बॉटल्स हैं, इनमें 7 ऐड कर देता हूं तो ट्यूसडे वाली बॉटल्स हो जाएंगी। इसमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं बनेगी। आराम से देखो पहले, इज दिस हाउ इट इज सपोज्ड टू बी? जी सर। अब बताओ, इक्वेशन तो बन गई, जस्ट सॉल्व इट। क्वाड्रेटिक भी नहीं है, इट्स वेरी इजी। 48 एलसीएम लेना पड़ेगा, x minus 75 plus 7 will be multiplied by 48 is equals to x over 45. इसको simplify करो पहले। What do you get when you simplify this?
minus 75 plus 7 times 48. यस बच्चों, क्या आ रहा है x के बाद? ये सिंप्लीफाई करके कोई बताएगा? minus 3264. जस्ट दिस पार्ट माइनस कैसे आ सकता है? दोबारा करो. minus 75 plus 7 times 48. Right. Oh, sorry, sir. 261. Plus 261. तरीका का आंसर है, सब खुद वेरीफाई करें. इज इक्वल्स टू 48x 45x 45 को इससे मल्टीप्लाई कर लो. व्हाट डू यू गेट? 11,745. तो 11,745 48x minus 45x 11,745 is 3x. x की वैल्यू क्या आई? 5 divided by 3. बताओ क्या आ रही है x की वैल्यू? 3,915. 3,915. जी. ओके क्लास, पहले जरा सब ये फिगर बना लें. इम्पोर्टेंट है कि बार बार देखने में प्रॉब्लम ना हो. जस्ट ड्रॉ दिस फिगर वंस. साथ साथ लिख नहीं रहे हो, एक्टिव नहीं हो क्लास में, तो ऑनलाइन क्लासेस का कोई फायदा नहीं है. यू बेटर रेस्ट और डू समथिंग एल्स. बना लिए सबने फिगर? यस बच्चों, डन. ओके, नाउ दिस इज अ सिमिलर ट्रायंगल. सिमिलर ट्रायंगल्स में लेंथ का जो रेशियो होता है कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ का, वो सेम होता है. एंड हाउ डू वी नो कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ? कौन सी लेंथ किसको कॉरस्पॉन्ड करती है? एंगल से पता चलता है. ये दो रेड में जो मैंने एंगल्स मार्क किए हैं, दे आर इक्वल बिकॉज दे आर, कौन सी प्रॉपर्टी है ये? विच प्रॉपर्टी इज दिस? ये दोनों एंगल्स क्यों इक्वल हैं? ऑल्टरनेट वाली. यस, ऑल्टरनेट एंगल्स. वेरी गुड. तो अब पता कैसे चलता है? इस एंगल के जो सामने वाली साइड है ना, y+1, वो y को कॉरस्पॉन्ड करती है. मतलब सिमिलैरिटी में देखा जाए तो y+1 एक जैसी साइड्स हैं, सिमिलर साइड्स हैं. इसी तरह इफ आई ड्रॉ अनदर एंगल, ये वाला ग्रीन, उसके सामने वाली साइड है y+2, तो y+2 कॉरस्पॉन्ड करती है 2y-1 को. ये दो सिमिलर साइड्स हैं. सिमिलर साइड्स का रेशियो हमारे पास सेम रहता है. हम कहते हैं भाई फॉर सिमिलर फिगर्स लेंथ 1 और लेंथ 2 का रेशियो लो, वो रेडियस 1 और रेडियस 2 के रेशियो के बराबर है फॉर सिमिलर फिगर्स, या हाइट 1 और हाइट 2 के बराबर है. तो एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो
सेम होता है। इसमें भी अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लगाएंगे सो वी विल गेट द इक्वेशन। कैसे आएगी, कौन सी साइड किसको कॉरेस्पॉन्ड करती है, बस ये देखना है। अगर मैं ये वाले ट्राइंगल को आर एक्स एस को मैं लार्जर ट्राइंगल ले रहा हूं तो y+1 और y का जो रेशियो है y+1 रेशियो y इज बेसिकली इक्वल टू, अब यही वाली साइड ऊपर लिखनी पड़ेगी 2y - 1 अपॉन y+2, 2y - 1 अपॉन y+2। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? दिस इज रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स। Okay. Now we will cross multiply, use appropriate brackets, simplify and tell me क्या इक्वेशन आ रही है। मैं आपके लिए रेशियो लिए दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। जी बेटे, वहाँ पे रेशियो लिया ये कैसे ये दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का लिया है कि ये वाली जो साइड है इस एंगल के सामने वाली, छोटे ट्राइंगल में भी उसी जैसे एंगल के सामने वाली, ये कहलाती है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, एक जैसी साइड्स, सिमिलर साइड। इसी तरह 2y - 1 और y+2 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। अब मैं लार्जर ट्राइंगल और स्मॉलर ट्राइंगल का रेशियो ले रहा हूँ, y+1 और y का जो रेशियो है वही 2y - 1 और y+2 का होगा। क्लियर है? उसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने सिंपली, और अब आप सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट खोलो, y को पहले y से मल्टीप्लाई करो, y² + 2y + y + 2 is 2y² - y, बेशक इन सबको y² + 3y 2y² - y² -y - 3y -2, ये हो गया y² - 4y -2। Sir, equation आ रही है 1, equation आ रही है y² + 3y + 2। नहीं, देखो इक्वेशन वही आनी चाहिए, क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है, अलग कैसे आ सकती है?
देखो इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है. सर मुझे समझ आ गया मैंने क्या याद किया था. करेक्ट करो, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जल्दी से करो. शाबाश. क्या हुआ बच्चों, क्या आ रहा है आंसर? 2 डेसिमल प्लेसेस में कैसे यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? एक आंसर 4.45 है, दूसरा आंसर 0.45. उसके बाद उसने Rx की वैल्यू निकालने का ही है. Rx की वैल्यू में देखो 0.45 डालेंगे तो
नेगेटिव आएगी। तो दूसरी वाली वैल्यू डाल के RX की वैल्यू निकाल के बताओ क्या आ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RX?